and we are studying the science in which the topic why do we fall ill, and until now what we have learned. I would like to recall you. We learn what is health. So health is a wider term. It concludes with the WHO definition: physical, mental, and social well-being without any alignments, without any disease. And we also discuss the disease. Disease means not feeling well, and when we feel uncomfortable, when there is some problem in your body, some body system is not functioning properly, and then we said that there is a disease. So disease can be recognized by its symptom and sign, and we have also seen the disease two types. One is acute and one is uh, chronic. In acute disease, it lasts for the 4 5 days or week. In chronic disease, it lasts for a few months or few years. So these are the two categories of the disease that we have seen. We have seen the cause of the disease. The cause were two types: immediate cause and contributory cause. Among the immediate cause, we have seen two types of the cause: infectious cause and non-infectious cause. In infectious cause, we have seen the infection. Infections are the entry of the microbes or the disease causing agent, microorganism we can say, that enter in the body, and after entering their body they manifest, they show their effects. And the effects, it is according to the evolution of these microbes. The some organisms, they evolved to stay in the lungs, some evolved to stay in the liver, some evolved to stay in the brain. So different organs they manifest. For example, TB and pneumonia, these bacteria used to enter through nose and stay in the lungs and uh, passage of the air, whereas the jaundice and the typhoid bacteria, they enter through mouth with food. So they used to stay in the our alimentary canal and can damage the liver. So this is not for all the organisms. Some organisms enter by any means, and they have the different manifestation, different effects. Sometime, for example, malaria parasite plasmodium enter the our RBC and the liver. The virus of the encephalitis that enter to the brain, and HIV we have seen in sexual contact the virus enter, but they enter into the our uh, limb glands present in the neck and the different body parts. So they affect differently, and we have symptoms, uh, common symptoms: inflammation, inflammatory reaction, that is the recruitment of the WBC. Also we have seen sometimes there is general effect of fever. So these are all the manifestation.
after entering the pathogens. Sometimes very less number of the pathogen enter in the body, so that can be killed by our body defense system, that is our WBC, that destroy that few number of the bacteria, and we do not notice it. But sometimes the bacteria or the pathogens, they are in the large number, then it becomes difficult to encounter by WBC, and then we fall ill. So how this pathogen enter in the body, that also we have seen. So that can be enter in the body by direct contact or by indirect contact, such as food, water, cloth, like that, or sometimes some agents that we call the vector, housefly, mosquito, or the dog, right? They spread the disease. So these are the vector. So how they spread, how they enter, how they affect, we have seen. I would like to recall again and again, because we have to be very safe and healthy. Then once the pathogen enter in the body, they manifest the body. We have uh, means we face the problem, we face the difficulty, we feel uncomfortable, then we go to doctor, and doctor give the treatment. The treatment has the two basic principle. First principle is to reduce the effects or the symptoms that is appear due to the entry of the pathogens. So symptoms such as high grade fever or the loose motion, dehydration. So first of all, uh, we reduce these symptoms. To reduce the fever, sometimes doctor used to give the paracetamol tablets to come down the temperatures, or the cold sponging. You might have seen the that will help to reduce the temperature. Sometimes doctor uh, gives the intravenous fluids, that is the saline, you might have seen, so that uh, resume the body water level that is lost due to the loose motions. So these are the treatment, what you call, to reduce the symptoms. So this is the first principle of treatment. And the second principle of treatment, to after finding the exact cause of the disease, or the what is the diagnosis, after diagnosing the disease, after recognizing the disease, after knowing the immediate cause, after knowing the particular pathogens that have entered in the body, so physician find particular antibiotic or the medicines to kill this pathogen. And this is the second line of the treatment, second principle of the treatment. So these are the two principle of the treatment. One is to reduce the symptom, and second is to kill the pathogen. But in this course, our body somehow get damaged. There is a loss of time, uh, wastage of the money. So this should not happen. Therefore, it is said that the prevention is better than cure. So there is a principle of prevention. Now we are going to discuss now principle of prevention. How can we prevent disease? There are the two ways of prevention. One we call the general way of the prevention, and one specific to each disease. तो बच्चों, आप लोगों ने आज जो हमको सीखना है, तो आगे बढ़ने के पहले मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया है। अगर मैंने क्या कहा आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोहराता हूँ कि हमने बीमारी के बारे में पढ़े हैं, और बीमारी कैसे आती है तो हमने देखा है बीमारी क्या होती है। हमारे बॉडी में किसी भी तरह से
अस्वस्थ महसूस होता है, मतलब कोई बीमारी होती है और बीमारी की क्या वजह होती है। तो बीमारी मतलब कैसे दिखती है, तो बीमारी दिखती नहीं है, बीमारी महसूस होती है उसके लक्षणों से। तो इसको हम बोलते हैं सिम्टम्स और साइन। तो इससे हमको बीमारी का पता लग जाता है। तो ये इसका बीमार होने का कारण क्या है? बीमार होने के मुख्य दो कारण हमने पढ़े हैं, एक इमीडिएट कॉज और एक कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो हम इमीडिएट कॉज के बारे में पढ़ रहे थे। इमीडिएट कॉज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस के बारे में हमको पढ़ना है। इन्फेक्शन से होने वाला डिसीज़ उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन मतलब एंट्री होती है पैथोजन की। पैथोजन क्या होते हैं? तो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और एजेंट आउट ऑफ माइक्रोब जो हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं। तो किसी भी बीमार करने वाले जीव जंतु का हमारे बॉडी के अंदर घुसना यानी इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन कैसे घुसता है हमारे बॉडी के अंदर? तो इसके अलग अलग जरिया होता है। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से होता है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे फूड, पानी या कपड़ा या किसी जानवर से होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन घुस सकते हैं। तो कुछ बीमारियां कुछ कम समय के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज़। और कुछ कुछ बीमारी ज़्यादा समय लेती है तो उसको बोलते हैं हम क्रोनिक डिसीज़। तो पैथोजन की संख्या अगर कम है हमारे बॉडी के अंदर घुसने पर, तो हमारे WBC ही काफ़ी है उसको ख़त्म करने के लिए, और वो इन्फेक्शन हुआ हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन कभी कभी पैथोजन बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और हमारे जो WBC है फिर कम पड़ जाते हैं उसको फाइट करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए। तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ने के बाद फिर हमारे बॉडी में हमको अस्वस्थ महसूस होता है, सिम्टम्स होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर दो तरह की ट्रीटमेंट देता है, एक तो तकलीफ़ कम करने के सबसे पहले, और तकलीफ़ क्यों हो रही है उसकी वजह ढूंढ कर उसको तकलीफ़ को भी ख़त्म करने, उसकी वजह को भी ख़त्म करने के लिए दूसरी ट्रीटमेंट। तो एक तो तकलीफ़ कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं और दूसरी इन्फेक्शियस एजेंट जो भी होगा उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दे के हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारा पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है और हमारे बॉडी को लॉस भी होता है। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, तो कहा जाता है कि अ, अ, हमारा जो बचाव करना यही हमारा उपाय है। तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमारा बचाव कैसे करना है, प्रिवेंशन करना है, बीमारी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हम बचाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जो जनरल तरीका होता है और दूसरा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये विशेष बीमारी के लिए ही स्पेसिफिक होता है, सभी के लिए नहीं होता है। तो ये दोनों तरीके हम अभी देखने जा रहे हैं। तो ये तो एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट था, उसने किया था, इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो जनरल जो मेथड है प्रिवेंशन का, हमने पढ़ा है कि जो पैथोजन है हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट से आता है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कोई बीमार है तो उस व्यक्ति के पास न जाते हुए दूर रहे, उसके पास जाएंगे, उससे अगर हम हाथ मिलाएंगे या उसके उसके साथ में खाना शेयर करेंगे या उसके साथ पानी पिएंगे, या तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई खाना है और खाने के ऊपर कोई बीमारी के जंतु हो गए, कोई ऑर्गेनिज्म हो गए, वो हमको पता नहीं है, किसी बीमार आदमी ने उसको छुआ होगा और वो खाना अगर हम खाते हैं, या अगर कहीं ऐसे ऐसी जगह का पानी जहाँ पैथोजन होगा किसी के द्वारा छोड़े गए तो वो पानी अगर पीते हैं, तो इस तरह के से हम मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हाथ मिलाना या सेक्सुअल कांटेक्ट करना, इसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। तो इससे
और इनडायरेक्ट में मतलब फूड खाएंगे जिसके ऊपर इन्फेक्शन, जिसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, या पानी पिएंगे उसके भी अंदर कोई जीव जंतु हो सकता है ना। तो खाना खाना, पानी पीना या बीमार आदमी के सामान यूज़ करना, कपड़े यूज़ करना, है ना, ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो हमने क्या बचाव करना है, उस बीमार व्यक्ति के हाथ नहीं मिलाना है, उससे थोड़ा फिजिकली दूर रुकना है। खाना खाने के पहले वो इंश्योर कर लेना कि खाना कहीं इधर उधर पड़ा ना हो। पानी पीने के पहले ये देखना है कि पानी के अंदर कोई पैथोजन ना हो, पानी शुद्ध हो। तो ये हमारे जनरल तरीका है बचाने का। इसी तरह से वेक्टर्स, जैसे मलेरिया होता है, मच्छर काटता है तो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मीडियम को घुसा देता है। तो हमको बचाव करना है कि मच्छर हमको ना काटे। तो मच्छर ना काटे इसके लिए क्या करना है, हमारे घर के आसपास जो पानी का अगर कहीं उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको डिस्ट्रॉय करना है, मॉस्किटो नेट लगाना है, हमारे दरवाजे खिड़कियों को मॉस्किटो नेट लगाना है। या हम कभी कभी जिसके घर में इलेक्ट्रिक हुआ तो वो गुड नाइट की टीकियाँ लगाते हैं रात को सोते समय। या तो फिर इलेक्ट्रिक नहीं है तो हम वो कॉइल जलाकर मच्छरों को भगा सकते हैं। और थोड़ा साफ़ सफाई रखेंगे तो मच्छरों से बचाव सकता। अगर मच्छर नहीं काटेगा तो हमको मलेरिया होगा ही नहीं। तो ये तो हो गया इस तरीके से बचाव। इसी तरह से मक्खियाँ, तो बारिश के दिनों में बहुत मक्खियाँ होती है, गंदगी होती है, और गंदगी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। उस मक्खियाँ वो गंदगी के बैठती है, फिर उनके पैर को चिपर कर वो मक्खियाँ उड़ कर आती है, फूड पे बैठ जाती है। तो हमारे घर के आसपास गंदगी ही ना हो, कचरा दूर डिस्पोज करना है, फेंक देना है, कचरा जमा नहीं होना चाहिए। और फूड को खुला नहीं रखना है, ताज़ा फूड खाना है। अगर बना बनाया फूड है, ज़्यादा देर तक रखा होगा तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ सकती है और उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ सकती है। तो इस तरीके से भी हम हमारे बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बचा सकते हैं कि ताज़ा भोजन खाना। इसी तरह से पानी, ये मालूम होना चाहिए कि पानी सही है, पीने लायक है, शुद्ध है, इसके अंदर कोई जीव जंतु नहीं है। इसीलिए हमारे स्कूलों के अंदर ये आर ओ वाटर की सिस्टम लगाई है। आर ओ वाटर सिस्टम से जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वो सब रिवर्स ऑस्मोसिस से वो छान कर पानी आता है हमारे पास में, और वो पानी पीने लायक है। तो ऐसा ही पानी पिएंगे तो हमारा प्रिवेंशन होगा, हमारा बचाव होगा। तो ये हमारी खाने से, पीने से, फिजिकल कांटेक्ट से बचाव होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं रेबीज़, ये कुत्ता काटने से होता है। तो कुत्ता ही ना काटे, उससे पता रहे कुत्ता कैसा है। अगर जो अननोन डॉग है जिसकी पहचान नहीं है उससे दूर रहे, और कुत्ते बिल्ली को ना छेड़े, क्योंकि कुत्ता बिल्ली काटने से भी हमको रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम दूर रह सकते हैं। तो हम खाने से, पीने से या कांटेक्ट से अगर दूर रहेंगे तो हम अपने बीमारी से बच सकते। तो ये हो गया हमारा जनरल तरीका बीमारी से बचने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम और केयर कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। नहाना चाहिए रेगुलरली हमारे कपड़े धोना चाहिए, हमारे कपड़े धूप में सूखना चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो जितना हम ये केयर कर सकते हैं, इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। तो जितना हमारा साफ़ सुथरापन रहेगा, हमारे घर के आसपास का एरिया भी साफ़ सुथरा रहेगा, तो हम बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जनरल। अब ये स्पेसिफिक तरीका क्या हो सकता है, तो ये सबसे पहले पता लगाया था ये एडवर्ड जेनर ने ऐसा देखा, महसूस किया कि जो मिल्क मेड होती है उसको, उसके जानवर को काऊ पॉक्स होता है, ये स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है, चेचक की बीमारी। तो वो उस बीमार
गाय के संपर्क में रह के भी उसको चेचक की बीमारी नहीं होती है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो ऐसा ऑब्ज़र्व किया एडवर्ड जेनर ने, और उसने महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है प्रतिकार की जिसके अंदर डेवलप हो गया और उसको ये बीमार नहीं पड़ती। फिर उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो एक बार चेचक की बीमारी से बीमार हो जाता है, दोबारा वो बीमार नहीं पड़ता है। तो एडवर्ड जेनर को महसूस हुआ कि ये पैथोजन जो माइक्रोब्स है, इसके संपर्क में एक आने से हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा प्रतिकार शक्ति तैयार हो जाती है। और उसको प्रूव करने के लिए उसने एक बीमार गाय का जो पैथोजन है निकाल कर अपने बेटे को दिया था, थोड़ा सा इंजेक्ट किया था, और थोड़े से प्रमाण में देने से वो बच्चा बीमार नहीं हुआ। लेकिन उसको फिर बाद में बीमार लोगों के साथ में रखा गया, लेकिन उसको वो बीमारी नहीं हुई। तो एडवर्ड जेनर ने पता लगाया, और फिर इसके आगे लुइस फॉस्टर ने इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा गया कि हमारे बॉडी की जो WBC है, उनको वो WBC हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी तैयार करते हैं। तो उसको इम्यूनिटी तैयार करने के लिए उसको हम चीट करते हैं, डिसीव करते हैं। कैसे? तो जो भी बीमार करने वाले पैथोजन है उसको हम बॉडी के अंदर थोड़ा सा घुसाते हैं, तो उसको देखकर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, और उसकी वजह से जब भी वो पैथोजन आएगा तो हमारे WBC तैयार रहते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन ये इम्यूनिटी सभी बीमारियों के लिए नहीं होती है, कुछ कुछ बीमारियों के लिए ही होती है, और हम उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये वैक का मतलब काऊ, उससे शब्द बना है वैक्सीन। तो आजकल वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक ही होती है, मतलब कुछ विशेष बीमारियों के लिए ही होती है। आपने देखा होगा कि बचपन में अपने लेफ्ट हैंड जो कंधा है, बाई है, उसके ऊपर एक इंजेक्शन का निशान लगा होता है, वो BCG का है। तो BCG की वैक्सीन लगाते है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे मैं लिखा है, मेनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर द इम्यूनिटी के लिए, प्रिवेंटिंग के लिए होल रेंज ऑफ द इन्फेक्शन डिसीज एंड प्रोवाइड द डिसीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ द प्रिवेंशन। देर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट द टिटेनस के लिए वैक्सीन है, डिप्टेरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मेनी अदर। दिस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द चाइल्डहुड। तो इन बीमारियों के लिए ऐसे वैक्सीन बनी है, वैक्सीन बचपन में दिया जाता है। अब बचपन में देने से हमको वो अभी तक बीमारी नहीं हुई, तो इसलिए हमको उस बीमारी का पता ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारी आते ही हमारे बॉडी के अंदर के ये जो इम्यूनिटी है उसको ख़त्म कर देती है, इसलिए उस बीमारी का हमको जानकारी नहीं है। लेकिन सुना होगा आपने पोलियो से लंगड़ा हो जाते हैं, पैर चले जाता है, लेकिन वो बीमारी अभी धीरे धीरे कम हो गई, उसका वैक्सीन मुंह से ड्रॉप देते हैं, ये कम हो गया है। तो ऐसे वैक्सीन बनी हुई है स्पेसिफिक बीमारी के लिए, इसलिए इस बीमारी से बचने का यही विशेष तरीका है। तो आज मैं ये दो ही चीज़ बताऊंगा, और इसके ऊपर फिर मैं कल और से समराइज़ करूँगा। अभी आप मेरी बात समझ गए।